Good morning, student. Today I will revise you the second chapter of civics, which is come in your second monthly exam. Chapter name is Understanding Secularism, धर्मनिरपेक्षता की समझ. What is secularism? धर्मनिरपेक्षता क्या है? In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. बच्चों, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड practices as they interpret these. In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है. सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है. Secularism refers to this separation of religion from the state. धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है. Why is it important to separate religion from the state? धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? As discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. जैसा कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना. This power is important for a country to function democratically. एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है. Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं. Within these religious groups, there will most likely be one group that is in a majority. जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी. If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religions. अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं
तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य सत्ता के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। This tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion, and at times even the killing of religious minorities. बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions. उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है। Any from the domination based on religious is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen, irrespective of their, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी की जा सकती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को भी उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic societies. धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। Another reason that it is important to separate religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individual of exist from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teaching differently. लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। To understand this point better, let us take the practice of untouchability. आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। You might feel that you dislike these practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो। However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this?
इसका मतलब यह है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? इवन इफ यू वर पार्ट ऑफ द dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व को केवल एक ही व्याख्या होती है, यानी हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है. व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mandates that the Indian state be secular. According to the Constitution, only a secular state can release its following. भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा. हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि नंबर फर्स्ट, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर. कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए. Second, that some members do not dominate other members of the same religious community. कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं. और नंबर थर्ड, that the state does not enforce any particular religions nor take away the religious freedom of individual. राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा. द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द एबव डोमिनेशन. इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है. फर्स्ट इज इट uses a strategy of distancing itself from religion. पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है. The Indian state is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion. भारतीय राज्य की वागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है. इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेज आर नॉट supposed to display or promote any one religion. भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर
जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने व उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इन द above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government's policy of treating all religions equally। उपरोक्त चित्रकथा पट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन अदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजियस celebrations। This rule does not apply to private schools। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं और यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है। The second way in which Indian secularism works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference। आर्थिक धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the state make certain expansion for particular religious communities। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। इन द above storyboard, परमजीत द सिख youth does not have to wear a helmet। इस चित्रपट कथा पट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेज दैट वियरिंग ए पगड़ी इज सेंट्रल टू सिक्स रिलीजियस practice, and in order not to interfere with this allows an expansion in the law। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इन थ्रू ए स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। यू रीड अर्लियर इन द चैप्टर above untouchability। दिस इज ए गुड एग्जाम्पल वेयर member of the same religious dominate other members
विद इन इट। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग यानी ऊंची जात के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution banned untouchability। धर्म के नाम पर अलग अलग करने और भेदभाव के रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इन दिस स्टैंड द स्टेट इज intervening in religion in order to end a social practice that is believes, discriminates and excludes। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है जो कि निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल्स। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। Indeed, it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening। बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है। This knowledge that such right exist makes us sensitive to their violation and enables us to take action when these violations take place। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। थैंक यू।